کاپیاں خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ ہم سب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ میں اب کافرون لا بدو ماتا بدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم وانتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب ایسے معذور صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مہمانوں کا سواگت کریں اور شکریوں کے ذریعہ میں سب سے پہلے جناب صدر کی خدمت میں شکریوں پیش کرنے کے لیے ایسے معذور صاحب کو رحمت دینا چاہ رہا ہوں۔ ایسے معذور صاحب جناب پیش کر رہا ہوں میری طرف سے جناب ایسے معذور صاحب کی خدمت میں۔ کیسے دو کو ساتھ ساتھ کو چھ بڑھائے گا، ایسے میں آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے دیا، اس کے لیے مزدار اور میں آپ لوگوں کو مقبول و مشکور ہوں۔ اب ایک سرسری کا جائزہ سیبل چٹوپادھیائے کے متعلق کیا ہے، اس لیے نیا نام ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ ناواقف ہیں۔ اور پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب میں نے یہ کتاب ترتیب دی سیبل کی کہانیاں، لوگوں نے کہا کہ بھائی اتنے بڑے بڑے نام تھے رجندرناتھ ٹیگور سے لے کر کے سبھاش مکھوپادھیائے سے لے کے کون نہیں تھے، بنکول شرد چندر چٹرجی بنکل چندر چٹوپادھیائے، آپ نے سیبل کا نام کیوں سنا؟ تو سیبل کے نام سننے کی کئی وجوہات ہیں، جس سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو لیجنڈری ہیں ان لوگوں کو گزرے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو اس دوران جو بنگلہ کا ادیب ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کی فکر کیسی ہے، اس کا ذہن کیا ہے، اس کو آپ لوگوں سے متعارف کروانا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیبل کی کہانی جو ہم پڑھیں، بنگلہ کے جو کہانی کار ہیں، جو شاعر ہے، میری یہ تعریف ہے وہ بھی کہ ان لوگوں کو بھی آپ لوگوں کو متعارف کرواؤں، اور یہ جو قریب ہے، یہ جو گیپ ہے یہ کچھ کم ہو جائے کہ ہم لوگوں کے فکر ان لوگوں کے فکر میں کہاں گیپ ہے۔ تو اسی تعریف کی یہ پہلی کڑی ہے سیبل کی کہانیاں۔ اور سیبل چٹوپادھیائے پور گرام پنچایت ہگلی کے رہنے والے ہیں، جہاں کے مشہور شعراء آفاق بنگلہ کہانی کار ناول نگار یہ ادیب کے لیے شرد چندر چٹوپادھیائے کا بھی وہ مکان ہے، اور ان کے مکان سے جو ہوا آتی ہے وہ اسی کے مکان میں آ کے ان کو بھی لگ گئی ہے۔ اس لیے یہ بھی جو ہے بنگلہ کے ادیب ہے، بہت اچھی کہانیاں لکھ رہا ہے۔ انہیں چند باتوں کے ساتھ اور آپ سب سے ایک بار پھر خدمت کرتے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بھی تہوار سے تعبیر کرتا ہوں، اور آج یہ تہوار منانے کے لیے یہاں کافی لوگ جمع ہیں۔ میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وقت نکال کر آپ یہاں تشریف لائے۔ کتابیں اردو میں بہت چھپ رہی ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں گفتگو کروں، میں ایسے معذور جو میرے لیے صالحین بھائی ہیں ان کا اور بزم نثار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے افتتاح کے لیے مجھے یہ اعزاز دیا، میں اسے اعزاز سمجھتا ہوں، میں انہیں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کتابیں اچھے لگے، خاص طور سے ایک کہانی جو مجھے سب سے اچھی لگی وہ ہے ابا کی گھڑی۔ حالانکہ یہ کہانی روح ادب میں شائع بھی ہو چکی تھی اور وہ شمارہ میرے پاس آیا بھی تھا، لیکن کئی رسالے جب آتے ہیں تو کچھ رسالے دب جاتے ہیں۔ میں سچی بات اس وقت میں کہانی وہ پڑھ نہیں پایا تھا۔ جب یہ کتاب میرے سامنے آئی اور جیسا کہ وہ ابا کی گھڑی یہ کہانی موجود ہے، تو سب سے پہلے میں نے وہی کہانی پڑھی اور سب سے زیادہ اسی کہانی سے متاثر ہوا۔ بڑی ایموشنل کہانی ہے، پرانی یادوں سے جڑی ہوئی کہانی ہے۔ مصنف کے والد کی ایک گھڑی ہے جو پرانے زمانے کی گھڑی ہے جو چابی سے چلتی ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر آپ پڑھیں گے، لیکن یہ بتاؤں کہ اس گھڑی سے اور وہ گھڑی جہاں بنائی جاتی تھی، مصنف کے والد جہاں گھڑی بنواتے تھے، ریپیئر کرواتے تھے، اس کا بھی بیٹا اب زندہ ہے، باپ مر چکا ہے، ادھر کی مصنف کا بھی باپ مر چکا ہے، بیٹا ہے، اور اس کے بعد اس گھڑی سے دونوں کے جذبات کیسے جڑے ہوئے ہیں، دونوں کے ایموشنز کیسے جڑے ہوئے ہیں، اس کہانی کا مزہ یہیں پر ہے۔ تو آج
میں मुबारकबाद पेश करूँगा एक माधु साहब को कि उन्होंने तर्जुमे का काम शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, बताता चलूँ कि जब मैं बनफूल की कहानियों का तर्जुमा कभी दिलचस्पी के बता दूँ, लिखे हाँ जो बच्चों की कहानियाँ लिखी थी उसका भी तर्जुमा हुआ, नॉवल का तर्जुमा भी हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बच्चों का अदब तो बहुत है, बंगला में बच्चों के अदब पर शिशु लिटरेचर तो बहुत रिच है, ज़बरदस्त है। भूतिया कहानी भी उसका भी बहुत सुंदर, बुक फेयर में जाइए तो आप देखें कि वहाँ दुनिया भर की किताबें हैं जो मतलब बच्चों के लिए, तो वो सब भी उर्दू में आए। लेकिन संजीदा मज़ामीन भी जो हैं हमारे बंगला में, तनक़ीदी मज़ामीन क्या लिखे जा रहे हैं हम लोग नहीं पता। बंगला के राइटरों का तनक़ीदी शऊर कैसा है, तनक़ीद कैसे लिखी जा रही है, हम उर्दू वाले नहीं जानते। हम जानते हैं मतलब क्रिटिकल मज़ामीन जो उर्दू में বাংলা में लिखे जा रहे हैं। আমি বাংলা বলতে পারি, কিন্তু এখন আমি বাংলা বলবো না, তো আপনারা বুঝতে অনেক লোক বুঝবে, তবু আমি উর্দুতেই বলতে পারবো, বাংলা বলতে ভালো করে বলতে পারবো না, उर्दू बोलते चाहती। तो ये सब है। तो बहरहाल एक सिलसिला जब शुरू हुआ है तो आगे भी बढ़ता रहेगा और होगा। और मैं इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अब मतलब इनके पास इफ्तिताह हो गया है, तो क्या सिलसिला तो मैं किताब का इजरा इसकी रुनमाई के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे श्री दिलीप पाल जी को इसकी रहमत दी गई है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप किताब का इजरा करें। और एक जो जिनके पास कैमरा है बराए मेहरबानी रखा चलिए भाई, बहुत बहुत मुबारक। जी शुक्रिया। क्योंकि खूबसूरत उसमें उतना ज़्यादा मिसला पैदा नहीं होता है, तो वो चीज़ें मतलब मुझे कम नज़र आई हैं। बहरहाल वो काबिल मुबारकबाद हैं और मुबारक मुस्तहक हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम अंजाम दिया कि बंगला से उर्दू में तर्जुमा किया। और चट्टोपाध्याय भी बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं, उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया कि मेरी कहानी का तर्जुमा उर्दू में लाएँ। ऐसे आदिल साहब को जिंदा रखने के लिए उनकी तर्जुमा की जो किताब आई है वही काफ़ी है, वो उनको हमेशा जिंदा रखेगी। लेकिन फिर भी जो इनकी किताबें आ रही हैं और लगातार आएंगी, इसके लिए मुबारकबाद। और आज की जलसे की क्या कहूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे हजरात हाजिर हुए हैं, उन तमाम लोगों को भी हम लोग सुनेंगे। शुक्रिया। महीने का उन्वान है सोगल की कहानियाँ तज्जिया। किसी भी जबान का लिटरेचर या अदब समाज को इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। एक सच्चे और अच्छे अदीब की पहचान यह है कि उसकी निगाहें तेज और दिल एहसास और जज्बात से लबरेज है। वो हमेशा आंखें खुली रखता है। मैं इस मजमून में बंगला जबान के मशहूर अदीब डॉक्टर सोहेल चट्टोपाध्याय सोहेल की कहानियाँ जिससे इंटरव्यू जैसे माधु है, जो अपनी काविश से बंगला से उर्दू में इस किताब का तर्जुमा किया है। क्योंकि बेशुमार शोरा व अदबा ने अपनी अदबी सलाहियतों से फूल बिखेरे हैं। बंगाल की धरती पर एक से एक लासानी कलाकार पैदा हुए हैं। इस किताब की कहानी का इख्तिरार करने से कबल मुसन्निफ की हयात और कारनामे पर रोशनी डालता चले, इससे कारी भी वाकिफ हो सके। डॉक्टर सोहेल चट्टोपाध्याय का जन्म 1963 में जिला हुगली के मोगरा टिकरा ब्लॉक हुगली के देवेंद्रपुर में हुए, जो बंगला के नामवर नावलनिगार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का गांव कहलाता है। ये है इस किताब में इसका जिक्र है। आपका ही लिखा हुआ है जूते की बदौलत। वो जूता कोई लेके आता है, बोले भाई क्या आप दिल्ली आ रहा, बोले आपके जूते के बदौलत आ रहा। तो मैं आप लोग को मुबारकबाद देता हूँ और बहुत बहुत उनकी किताबों का नुस्खा मौजूद है। मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी ने आपकी कई किताबों को शाया किया। ये सब बातें आपकी काबिलियत की दलील है।
मैं आरजू भाई को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुतरजम की एक खूबी ये भी है कि वो इंशाइया लिखने में महारत रखते हैं। इस किताब में एक मजमून लेमू पत्ते की खुशबू के उन्वान से है। मंजली फुप्पू का घर देखने जाने का मंजर कशी इतना उम्दा है कि आंखों के सामने पूरा घर आ जाए, लेकिन फुप्पू की बेबसी उस वक्त उसे रुला रही है। मिसाल देखें और कहा, फुप्पू भात है? भात तो है लेकिन सालन नहीं है, लेम्बू नहीं है। इतना लेम्बू रहते हुए किस बात की फिक्र फुप्पू? और बोलते बोलते हरी पदू ने कई लेम्बू तोड़ कर ले आया और साथ में लेम्बू पत्ता भी सफाई कर। यहाँ हाली का एक रुबाई मुलाजा फरमाए। दौलत की हवस असल खुदाई है ये, सामान की हिर्स बेनवाई है ये, हाजत कम है तो है ये शहंशाही और कुछ नहीं, हाजत तो खुदाई है ये। ऐसे मासूम साहब एक अच्छे इंशाइया निगार है और इंशाइया लिखने के लवाजिम से वाकिफ है। उनको जुबान बयान पर गैर मामूली कुदरत हासिल है। इसके अलावा ज़ाती मशाहदात और तजुर्बात इसमें और उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। कुछ उसमें सलाखत नहीं है, टूट करके जुमला आया है काफ़ी जगहों पर। हमको ऐसा लग रहा था, देखिए अभी तर्जुमा का जो मामला चल रहा है, बात साथ वो अगर बात कही जाए, अभी गूगल बाबा वाला तर्जुमा चल रहा है। अभी गूगल बाबा वाला तर्जुमा चल रहा है। गूगल बाबा माने एक पेज आप उर्दू की है, उसमें लिख दिए उर्दू की बंगाली और फोटो किए वो बंगला तर्जुमा आ जाएगा, है ना? गूगल ठीक है, या बंगला से उर्दू वाला। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस तरह की कोशिश की है उन्होंने, और ये इसकी कोशिश है अगर आसानी से ब्लॉक नहीं बुलाया जाएगा। हाँ ठीक है, हमने क्या महसूस किया तो ये एक नया जो टेक्नोलॉजी आया है कि गूगल के जरिए लोग तर्जुमा कर रहे हैं, तो इससे तर्जुमा की जो रफ्तार है उसमें तेजी आ जाएगी। आप 100-200 पेज की किताब एक हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर ही कर लीजिए, लेकिन वो जो है गूगल से जब आप मुंतकिल कर रहे हैं उस वक्त फिर आपको टेक्स्ट में जाना पड़ेगा और फिर अपने तर्जुमे की ज़बान पे देखना, और उसको ठीक से मजबूत अगर नहीं कर पा रहे हैं आप तो वो तर्जुमा बहुत अच्छा नहीं है। उसमें तो हो गया लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। एक बात थी तो हमने क्या महसूस किया है, इस तरह की कोशिश हो रही है और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन तरह संजीदगी से उसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। लेकिन एक ही अंदाज की कहानी है, वैरायटी होनी चाहिए कहानी। तीनों कहानी के अंदर की ज़्यादा कहानी में नॉस्टैल्जिया बहुत है, नॉस्टैल्जिक है। अब जैसा कि नींबू पत्ते की खुशबू, तो नॉस्टैल्जिया है कि एक लेमू का दर्द था वहाँ पर, और वो ज़्यादा रात में फुकी के पास है तो लेमू का भात भी के साथ में कुछ का सालन के भात लेमू ने खाया था और पत्ता उसको मसाला खाया था उसके साथ में खुशबू थी। तो नॉस्टैल्जिया है। जब वो घर बन गया नया और दर्द काट दिया गया तो वो अब उसको नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रहा है कि भाई हम तो या तो अब वो क्या नाम है डाइनिंग हॉल हो गया यहाँ पर लेमू का दर्द है, तो नॉस्टैल्जिक कहानी। ठीक वही नॉस्टैल्जिया अभी जो सही बात उन्होंने अब्बा की घड़ी, उनकी कहानी अब्बा की घड़ी, मैंने बाबर घोड़ी अभी वो बंगला भेजा था, मैंने बंगला कहानी पढ़ी है, बहुत अच्छी कहानी है, जबान बड़ी साफ है। तो उसको मैंने चूँकि बंगला नहीं पढ़ा है और इनकी भी कहानी पढ़ी है तो हमको लगा कि गुंजाइश थी बहुत सारी। तो अब्बा की घड़ी भी नॉस्टैल्जिक मामला है, बाप मर गया उसकी घड़ी है, चाबी वाली घड़ी है, और दो डबल नॉस्टैल्जिक है। एक तो जो घड़ी खाद है उसका बेटा भी तो घड़ी के पीछे में, अब पता नहीं आप लोग नहीं, हमारे काली गली में मामला है, जबकि घड़ी के बनाने भी आते हैं ना, ये मिट्टी पत्ती खत्म हो जाती है जो, तो उसको लेता हो जाए करने के लिए घड़ी खोलता है, पीछे खोलने वाले अंदर में जो सिग्नेचर होता है अपना वो डेट लिखता है, ये देखने के लिए घड़ी जो बैटरी लगाई गई है इसमें गारंटी वारंटी कितने पीरियड है, अगर उस वारंटी के अंदर में खत्म हो जाएगी तो वो ऑफिस आएगा, तो साल भर की वारंटी देता है। जब पीछे में वो घड़ी को सिग्नेचर करता है तो उसका बाप की घड़ी को भी वो कड़ी साल के बाप था उसका सिग्नेचर किया था,
वो थिएटर का नॉस्टैल्जिया खरीदार के पास में है और घड़ी के नॉस्टैल्जिया उसके पास, उसके घड़ी वाले के पास। तो ये बड़ी अच्छी कहानी है। मैंने मुझे बोल दिया मगर वही मामला आ रहा कि ये तीसरी कहानी जो सब स्वेटर होती है, मेहमान नवाजी आला दर्जे के खानों में कहाँ होती है। ये तो जनाब सैबल साहब बताते हैं कि बासी भात में नींबू का रस, नींबू के पत्ते का चूरा दावती खानों से कहीं ज्यादा मजा देती है। शर्त ये है इसमें अपनापन, प्यार व चाहत भरपूर है। ये पढ़ने वाले की समझ से मुंहसर है। यहाँ हर एक कहानी अपने जुमलों में सच्चाई छुपाए हुए है। আরো বেঁধে বেঁধে জুড়ে জুড়ে থাকবো এবং সকলে আসুন আমরা আমাদের মায়ের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখি। যার যার মায়ের ভাষা সেই ভাষাটা যাতে নষ্ট না হয়, এই বলে সকলকে অভিনন্দন ধন্যবাদ জানিয়ে ফোনে পড়াতাম যারা তো চলে যেত চলে গেলে। তো এইটা করতে করতে দারুণ গল্প। তো আমি এই গল্পটাকে আমি ট্রান্সলেট করলাম, পড়ে বাংলায় ট্রান্সলেট করলাম, পড়ে আমাদের আমার ব্যাচমেট যে রিটার করলো ক্যামুদ্দিন খুব ভালো উর্দু জানে। আমি উর্দুটাকে ডাউনলোড করে বললাম তুমি উর্দুটা পড়ো তো। বাট যখন উর্দুটাও পড়লো তখন দেখলাম আমি যেটা ট্রান্সলেট করছি তার ওই যে একটু আগে বললেন মরণ, এই যে মরণ বলছে, এই যে মরণ একটা মেয়ে শেষ কথার বলছে মরণ। এই মরণ মানে হচ্ছে সে সমাজকে রিজেক্ট করছে, সে সমাজকে উপেক্ষা করছে, একটা শব্দ মরণ কথা বলছে ডেথ। কিন্তু না, ওই মরণ কথাটা ব্যবহার হচ্ছে সমাজকে রিজেক্ট করার জন্য। তো তুমি সমাজ আমাকে তুমি সম্মান দাওনি, তো মেয়েকে তুমি সম্মান দাওনি, সে সময় বিভিন্ন রকম তুমি আমাকে পরীক্ষা নিয়ে চেক করেছো। আমি শেষ কথার মধ্যে মরণ মানে কি আমি তোমাকে রিজেক্ট করলাম, মানে মরণ আমি যাবো তোমাদের সঙ্গে যাবো। হ্যাঁ কেমন তখন ওর সঙ্গে আমার হয়নি, আমি দিকে যখন পড়ালাম তখন দেখলাম ও যেটা উর্দুতে পড়লো, উর্দুটা আমি বুঝি, আমি বাংলাটাই বা কতটা বুঝি, তো উর্দু তো আমার কাছে অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ, কিন্তু তবু বুঝি আমি। তো যখন বলতে হবে এটা তো ইংরেজি ট্রান্সলেশন তো ঠিক নেই, তাহলে দেখুন ইংরেজি ট্রান্সলেশন ওটা কিন্তু ইউনিভার্সিটি লেভেলে চলে গেছে ইংরেজি ট্রান্সলেশনটা, কিন্তু তাদের মধ্যে ওখান থেকে কিন্তু অনুবাদ করেনি, তার হয়তো লিটারেলি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড অনুবাদ করেছে। কিন্তু ওই যে যেটা বললাম মরণ, কোল্ড কথাটা যে অ্যাম্পলিটিউড যে প্রচন্ড ডেপ, সেটা কিন্তু ইংরেজির মধ্যে আসেনি। তখন আমি ওটাকে চেঞ্জ করলাম, করে নিয়ে আমি আমার মতো মানে কেমন দিন যেটা বললো সেটাকে বলে আমি আবার অনুবাদকে চেঞ্জ করলাম। তারপরে বলেছিল তোমার প্রথম অনুবাদটা কিছুই হয়নি। আমি তো ইংলিশ থেকে অনুবাদ করি, আমি তো উর্দু থেকে অনুবাদ করি, চেঞ্জ ততগুলো ডেভিয়েশন হয়ে যাবে ততটা। তো সেই জন্যই বলছি যে ও যেটা করেছে হয়তো কিছু মানে দেখুন একটা থেকে একটা যেতে গেলে অ্যাপ্রোচের গোলমাল থাকে। আমরা বাংলায় যে কথাটা যেভাবে বলবো সেটা হয়তো উর্দুতে অন্যভাবে বলবে, যেটা একটু আগে আপনি বলছিলেন যেটা সেরকম তো থাকবে। কিন্তু তার সত্ত্বেও তর্জমা হোক, ভুল হবে সেটা আবার ঠিক করে নেওয়া যাবে, কিন্তু তর্জমা হোক। তাহলে আমরা যারা বাংলা ভাষী তারা জানতে পারবো উর্দু ভাষীরা কীভাবে লিখছে, বা অন্যান্য যে পার্সিয়ান ভাষায় কী রকম লেখা হচ্ছে, ক্যারিতে কী লেখা হচ্ছে। যদি তর্জমা না হয় তাহলে তো আমরা একটা মানুষের পক্ষে সব ভাষা জানা সম্ভব না। কিন্তু এই যে ব্রিজিং যেটা, এই ব্রিজিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু আমরা জানতে পারবো যে অন্য ভাষায় কীরকম লেখা হচ্ছে, কনসেপ্ট যেটা আর কি সেটাকেও আমাদের আদান প্রদান হবে। তাতে কী হবে, আমাদের সমাজটা উন্নত হবে। সাহিত্য কী হবে সেটা তো পরের কথা, সেটা আছে, কিন্তু উন্নত হবে আমার সমাজ। আমরা সমাজে কিন্তু সবাই তখন একত্রীভূত হয়ে থাকতে পারবো, এটা আমাদের কাছে চরম লাভের। तर्जमा है या तकनीक वाले होता है। इन सब गुफ्तगू के दौरान रजत तजर्रुब का शिकार होता और उसके दिमाग में घृणा बरपा होता है। वो ये समझता है कि पूरे जिस्म में मुल्क रहता है, जिसके अंदर गैर लतीफ और सख्त है, जो किसी भी तरह से तीन आरा से मुकम्मल और मुस्तफीद नहीं हो सकती। आज ये मुस्तफीद नहीं लिखते, मुस्तफीद लिखते हैं, पूरा हो गया है। नहीं अपने छोटे दिमाग में समझ सकती है और अंजाम का वो समझ बड़ा होता है, निशाना बनता है, लेकिन फिर वो हमेशा उसे समझने की कोशिश करता रहता है। ये सभा से छोटा क्या कहीं लग रहा है कि तर्जुमा हुआ है, मालूम होता है अपना अपना लिखा अपनी तकलीफ है। अलमुख्तर में आजू इस अजीम कारनामे पर ग्रेट अचीवमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रांसलेशन, so as Urdu and Bengali is concerned, I think that it is an achievement and part of the
और सर मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे आई एम ऑनर्ड that I am sitting with him, with a great scholar of Bengali, a writer, a poet, and सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक चीज़ को भूल जाते हैं, किसी किताब के लिखने में पढ़ने में एक चीज़ हमेशा भूलते हैं, जिसको खत्म नहीं करते हैं, वो होता है इसका प्रिंटर। प्रिंटर अगर नहीं छापे तो ले घूमते रहिए रोड में। प्रिंटर में दिलीप बाबू ने अगर नहीं छापा होता किताब को तो कहाँ किताब की मदद नहीं करते, इसलिए आई कंग्रेचुलेट हिम ऑल्सो फॉर पब्लिशिंग दिस वन along with that to our friend Upadhyay sir, जो मुझे की दोस्ती हुई है, और मैं आपको नमन करता हूँ कि आई विल लर्न समथिंग फ्रॉम यू। मैं बंगला का जानता, मेरे पास बंगला की एक किताबें मैं ढाका से लेकर आया हूँ, उसका तर्जुमा बंगला उर्दू हो सकता था, लेकिन मैंने कहते हिस्ट्री किताबें, बंगाल की हिस्ट्री, जो बंगाल की देखिए, बंगाल की हिस्ट्री मैं कंकर रंग सवाल हूँ, आपको बता दूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। बंगाल की हिस्ट्री प्योर हिस्ट्री, बंगाल की करेक्ट हिस्ट्री, 31 किताबें फारसी में हिस्ट्री ऑफ बंगाल लिखी गई हैं। मेरी किताब आने वाली है बंगाल में फारसी तारीख निवेसी, पर्शियन हिस्टोग्राफी इन बंगाल। तो उसमें मैं खुद चाहता हूँ कि जो तर्जुमे का माहिर है, तो मैं तर्जुमे में माहिर रहा नहीं, इसलिए हमारे सिलेबस ही ऐसा था कि मजबूत थे हम लोग, अंग्रेजी में फारसी करो, खड़गू करो, गजल करो, और मैं हमेशा जब किसी गजल तर्जुमा अटकता था तो जिनके वालिद मोहतरम मेरे उस्ताद मोहतरम था, मैं पहुँचता था, उनसे मदद लेकर के मैं तर्जुमा का दस्ता आता करीब बल्कि कहा बहुत सा तर्जुमा की हो, हालांकि आता मैं नहीं से आगे जाते थे, इनके वालिद साहब थे, तो वो फारसी के आदमी से बोले तो मैं बेटर नहीं, बेटर पर्शियन एंड बेटर हो। इन बातों के सामने अपनी लगता अपनी बात दिस वर्ड अल्लाह करे आरज़ू कि तमाम आरज़ुएं लिखने पढ़ने की पूरी होते रहे, और हम इसी तरह सुन रहे। फिर मैं एक बात मैं कहूँगा, अगर मुझे मालूम होता कि पहले भी काफ़ी हो गया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं